इस जानकारी के साथ। Viewers, with that, we're now going to proceed. Now, at least 2 people were also killed and several others injured after a building collapsed in Kota's Indravihar area. The incident occurred at a site where new construction was underway and the structure reportedly gave way from top to bottom. Kota Divisional Commissioner Anil Kumar Agarwal said preliminary information suggests the collapse may have been caused by negligence in construction quality. Expressing deep sorrow over the tragedy, Lok Sabha Speaker and Kota MP Om Birla said he is in constant contact with the district administration and has directed officials to speed up relief and rescue efforts. In a post on X, Birla said he had instructed the district collector and other concerned authorities to ensure swift rescue operations and proper medical treatment for the injured. Meanwhile, rescue operations are still ongoing. Teams from the National Disaster Response Force, State Disaster Response Force and the Fire Department remain deployed at the site. Alright, let's now go across to Yogendra Mahavar, my colleague who's live from the site where the building collapsed in Kota. Yogendra, thanks very much for joining us. Firstly, do take us through the situation on the ground right now. What kind of rescue work is going on as of now? देखिए, देर रात को ये कोटा में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं और जिनका अलग अलग अस्पतालों में उपचार जारी है। ये जिस जगह में खड़ा हूँ यहीं पर एक रात पहले बिल्डिंग खड़ी थी और इसी जगह पर ये हादसा हुआ है, जहां पर जो बिल्डिंग है 3 मंजिला वो अचानक से भरभरा कर गिर गई और बिल्डिंग के अंदर रेस्टोरेंट चल रहा था। उस रेस्टोरेंट में लोग मौजूद थे, स्टूडेंट्स मौजूद थे जो यहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे और अचानक से जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर गिरी और बिल्डिंग गिरने के बाद कहीं ना कहीं जो है जो स्टूडेंट्स थे वो इसके नीचे दब गए, कुछ लोग दब गए और रेस्टोरेंट के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर दब गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक स्टूडेंट शामिल है और एक जो है उसकी पहचान अभी होना बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये हादसा हुआ है वो काफी भयावह हादसा है, काफी दर्दनाक हादसा है, काफी गंभीर हादसा है, क्योंकि जहां पर अभी तक सामने आया कि बिल्डिंग को जो कंस्ट्रक्शन है उसमें लापरवाही बरती जा रही थी, जिसकी वजह से इस तरह का ये जो हादसा है वो सामने आया है। हालांकि ये सब जांच का विषय हो, जांच का विषय इसलिए भी है क्योंकि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए स्वीकृति कितनी मांगी गई थी और इस बिल्डिंग को कितनी ऊंचाई तक बनाया गया है ये भी जांच लगातार जारी है। लेकिन जिस तरह का ये हादसा सामने आया है काफी गंभीर हादसा है और इस हादसे से कहीं ना कहीं अब प्रशासन को भी सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहां पर स्टूडेंट एरिया है और 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो है इस समय कोटा में मौजूद हैं, जो कि अलग अलग जो है इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिस जगह ये हादसा हुआ है ये पूरा कोचिंग एरिया है, जहां पर ये रात को देर रात को दर्दनाक हादसा सामने है। जी Yogendra, bane rahe hamare saath. There's some more information now coming in. Viewers, following the building collapse there, Chief Medical and Health Officer Narendra Nagar said medical teams are checking the vitals of every patient brought to the emergency ward. He said patients are being shifted to the medical college and trauma hospital for treatment. Also added that the exact situation will be clear only after the debris is fully removed. The entire administration and medical teams are present at the site. Let's hear that statement. में जैसे कोई भी पेशेंट आ रहा है तो उसको हमारी टीम वाइटल चेक करके और मेडिकल कॉलेज और ट्रॉमा हॉस्पिटल शिफ्ट कर रही है और बाकी अंदर मलबे के अंदर मलबा साफ होने के बाद ही स्थिति पता लग पाएगी क्या स्थिति। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ खड़ा है और हम लोग भी कंधे से कंधा मिला के यहाँ खड़े हुए हैं। हमारी टीम्स पूरी खड़ी हुई है अलर्ट मोड पे। अभी तो कुछ लगभग कितने बच्चों को निकाला 500 से। All right, let's go back to our colleague Yogendra, who's live on the ground. Yogendra, फिलहाल कितने लोग हैं जिनकी जान ज़्यादा खतरे में है और ये भी जानकारी बताइए कि कितने लोग हैं जो अभी भी मलबे में ट्रैप्ड है। देखिए, ये जो देर रात को जो हादसा हुआ था उसको सुबह 4 बजे करीब पूरा रेस्क्यू कर लिया गया है, ऑपरेशन को पूरा वाइंड अप कर दिया गया है। इसमें 10 से ज्यादा जो लोग थे वो लोग फंसे हुए थे, जिनको सभी को देर रात को बाहर निकाल लिया गया है। इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा जो है अभी भी तीन लोग ऐसे हैं जो भी अभी गंभीर घायल है, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है, जिनको बचाने के लिए लगातार जो है
चिकित्सा विभाग की टीम, जो डॉक्टर्स की टीम लगातार पूरे रात भर से मेहनत कर रही है। इसमें जो एक स्टूडेंट की जो डेथ हुई है, उसकी माँ है वो गंभीर रूप से घायल है, जो कि अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो उनकी जान जो है वो अभी भी बनी हुई है। कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट था वो अपनी माँ के साथ इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया था। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट का जो संचालक है वो उसका भी जो है पैर है वो कट चुका है, उसकी भी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा दो लोग और हैं जो कि गंभीर रूप से घायल है। तो वह कहीं ना कहीं जो है जो दूसरे लोग जो घायल है उनको प्राथमिक उपचार के बाद उनको छुट्टी दे दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये स्थिति है वो अभी बनी हुई है और इस स्थिति को कहीं ना कहीं जो है ऑपरेशन को पूरा वाइंड अप कर लिया गया है और जो लोग घायल थे उनको अलग अलग अस्पतालों में ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। खतरे से बाहर वो बताया जा रहा है, लेकिन 4 लोग अभी भी है जिनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। जी योगेंद्र बने रहे हमारे साथ। Viewers, let's tell you some more details now coming in. Kota Divisional Commissioner Anil Kumar Agarwal has confirmed 2 deaths. He said preliminary information suggests that a new construction work was underway when the structure collapsed from top to the bottom. He added that negligence in construction quality could be a possible reason, as local residents have also claimed that drilling work was being carried out despite complaints. He's also added a detailed technical investigation will be conducted to determine the exact cause. Let's listen in. एक जस्ट अभी भी आया केस, उसके बारे में बताया गया है कि कोटा हार्ट हॉस्पिटल में सीधे ले जाया गया था उनको, और वहां से डिक्लेरेशन के बाद यहाँ लाया गया। 2 डेथ की खबर है। टोटल बिल्डिंग में अभी इसका कयास ही लगाया जा सकता है। मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि ये संख्या 12 से 15 के बीच में हो सकती है। इसमें लगभग अधिकांश रिकवर होती है। नेग्लिजेंस की दिखती है। हाँ, नेग्लिजेंस इसमें क्वालिटी को लेकर हो सकता है। बिल्डिंग का वो बता रहे हैं कुछ मौके पर जो लोग थे वो कह रहे हैं कि इस तरह ड्रिलिंग वगैरह चल रही थी, उससे कंपन चल रहा था बिल्डिंग में, उसकी वजह से हादसा हो सकता है। बाकी टेक्निकल आखिर All right, viewers, let's return to our colleague Yogendra, who's there live from the ground. Yogendra, do show us the visuals of the rescue and relief work that's going on behind you. And as far as the investigation is concerned, have any arrests been made, and what details are we picking up about the contractors who were carrying out this work? देखिए, जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहीं पर वो रेस्टोरेंट का जो है संचालन होता था, और ये जो मेरे सामने आप जगह देख रहे हैं ये वो कंस्ट्रक्शन है जिसमें सामने की तरफ जो ढाबा बना हुआ है इसके जस्ट पीछे का जो एरिया है यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और ये जो दीवार है ये वो दीवार है जो दोनों ढाबों को आपस में जोड़ने का काम करती है। और इसी जगह पर कहीं ना कहीं पीछे की तरफ जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उसकी वजह से एक धमाके की आवाज आई है। उसके बाद जो जिस जगह बिल्डिंग थी वो अचानक से धराशायी होकर गिर गई। ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं ये सीढ़ियां ऊपर जाने का रास्ता है, जहां पर ऊपर भी रेस्टोरेंट का संचालन होता था, और ये पूरा एरिया है जहां पर ये पूरा रेस्टोरेंट का संचालन होता था। तो कहीं ना कहीं ये जो हादसा हुआ है ये एक भयावह हादसा है। जेसीबी मशीन जो है वो रात भर से यहाँ पर खड़ी हुई है, और रात भर इसलिए खड़ी है कि कोई अगर कोई रेस्क्यू की जरूरत पड़ती है तो तुरंत किया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल राहत की बात यह है कि ऑपरेशन को पूरा वाइंड अप कर लिया गया है, और वाइंड अप करने के साथ में ही जो कहीं ना कहीं है अब राहत की बात यह है कि पूरे जो मलबा है उसको हटा लिया गया है। हालांकि देर रात को डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई थी ताकि मलबे में अगर कोई नीचे दबा हो तो उसके बारे में पता लगाया जा सके, लेकिन डॉग स्क्वाड की मदद लेने के बाद भी बिल्कुल राहत की बात है कि अब कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है मलबे के अंदर। सभी को निकाल लिया गया है और सबको ही निकाल कर जो है हॉस्पिटल में भेज दिया गया है उपचार के लिए। 2 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, जिसमें एक स्टूडेंट शामिल है और एक की पहचान अभी होना बाकी है कि वो स्टूडेंट है या रेस्टोरेंट का कोई कर्मचारी है। जी योगेंद्र, धन्यवाद।